बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ कि कैसे जुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हुई और कैसे जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल किया और फिर कैसे I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. क्या हो गई थी, वो आप पर नजर रखने लगी और आपको भगाने की कोशिश करने लगी। जुलेखा ने सोचा कि मैंने हर तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपना मतलब पूरा करना चाहा, तो इसने अपने ख्वामद की मिन्नत समाजत की कि शहर भर में यूसुफ की वजह से मेरी जलालत हो चुकी है, अब बेहतर यही है कि तुम यूसुफ को कैद में डाल दो। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया। फिर 7 साल बाद एक इंतहाई अजीबो गरीब ख्वाब जो कि अजीज मिस्र को आया था, इसकी तबीर बताने पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रहाई मिल गई। अजीज मिस्र की कुछ अरसे बाद वफात हो गई और वो जाते जाते तमाम इख्तियारात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में दे गया। चुनाचे इसकी वफात के बाद रियान इब्ने वलीद ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बना दिया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं बीबी जुलेखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी कैसे हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत जुलेखा की शादी का वाकया बड़ा ही अजीब है। प्यारे दोस्तों, अजीज मिस्र की मौत के बाद चूंकि जुलेखा तंगदस्त और मोहताज हो चुकी थी और इसकी आंखों की बनाई भी जा चुकी थी, तो किसी ने इसे मशवरा दिया कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि इस वक्त शाही मिस्र हैं, आप इनसे अपना मामला जिक्र करें। हो सकता है कि वो आप पर रहम फरमाएं और आपकी मदद कर दें और आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी तो इनका ख्याल रखा था और इन्हें इज्जत दी थी। इस पर किसी ने बताया कि ऐसा न कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपका वो सलूक याद हो जो आपने इन पर इल्जाम लगाया था और इन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा और आपकी वजह से ही वो 7 साल जेल में भी रहे। ये बात सुनकर जुलेखा खामोश हो गई और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने का इरादा तर्क कर दिया। कुछ अरसे बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़िज़ीन और अपने वजीरों मशीरों को लेकर शहर की तरफ निकले। जिस रास्ते से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुजरना था, इसी रास्ते पर बीबी जुलेखा बैठी हुई थी। इसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर ली। जब आप करीब पहुंचे तो वो खड़ी हो गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आने पर बुलंद आवाज में कहने लगी, वक्त ने क्या से क्या कर दिया, जिसने बादशाह को गुलाम और गुलाम को बादशाह बना दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए बीबी तुम कौन हो? तो वो अर्ज करने लगी,
मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी, क्योंकि अजीज मिस्र जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर अपने महल में लाया था तो जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बालों में कंघी किया करती थी और इसके साथ साथ इनके रहने की जगह को भी खुद साफ करती थी। जुलेखा ने कहा, मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत चुकी हूँ, मैं कमजोर हो चुकी हूँ, गरीब और लाचार हो चुकी हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं बूढ़ी भी हो चुकी हूँ, आंखों की बिनाई भी चली गई। पहले मिस्र के लोग मुझे देखकर खुश हुआ करते थे और वो अब मुझे देखकर मेरी तरफ दोबारा देखना भी पसंद नहीं करते। जुलेखा की दर्द भरी दास्तान सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ, इनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से फरमाया, क्या आपके दिल में अब भी हमारे लिए कुछ मोहब्बत बाकी है? जुलेखा ने कहा, जी हाँ, इसकी कसम जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, मुझे आपकी तरफ देखना जमीन पर सोना चांदी मिलने से ज्यादा अच्छा लगता है। आप ये बातें सुनकर वहां से चले गए और फिर आपने हजरत जुलेखा की तरफ पैगाम भेजा कि अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो हम निकाह कर लेते हैं और अगर तुम शादीशुदा हो तो हम तुम्हें गनी कर देंगे। बहरहाल कुछ अरसे बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इनका निकाह हो गया। आप इनके पास आए, आपने नमाज अदा की और फिर अल्लाह ताला से इसमें आजम के वसीले से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और बीबी जुलेखा की जवानी वापस आ गई, आपकी आंखें भी वापस आ गई और वो आप पर ईमान ले आई और इसी तरह बीबी जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में शामिल हो गई। जुलेखा ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा को अपने पास बुलाते तो वो ये कहती कि मैं अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हूँ। इनको दिन रात किसी चीज की खबर ना होती, वो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करती। आखिर एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो मेरी मोहब्बत में दीवानी थी, अब तुम्हें क्या हुआ? तो जुलेखा ने अर्ज किया, ये इस वक्त की बात थी जब मैं मोहब्बत की हकीकत से आगाह ना थी। अब चूंकि मुझे मोहब्बत की हकीकत मालूम हो चुकी है, अब मुझे अल्लाह की मोहब्बत में किसी को शरीक करना गवारा नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझे आपके बतन से 2 बेटे अता फरमाएगा और वो दोनों नबी होंगे। ये सुनकर हजरत जुलेखा ने अल्लाह पाक के हुक्म की अताअत की और सर झुका दी। कहा जाता है कि निकाह के वक्त आप बाकरा थी क्योंकि आपका पहला शौहर जो कि अजीज मिस्र था वो नामर्द था, तो इस तरह अल्लाह ताला ने आपको कंवारा रखा। प्यारे दोस्तों, बीबी जुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बतन से अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो 2 बेटे अता फरमाए, दोनों नबी थे। इनका नाम इफ्राइम बिन यूसुफ और मीशा बिन यूसुफ था। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इमाम कर्तबी लिखते हैं, मिस्र के बादशाह ने अजीज मिस्र की वफात के बाद जुलेखा की शादी हजरत यूसुफ से करा दी। हजरत यूसुफ ने शादी की रात हजरत जुलेखा से कहा, क्या ये इससे बेहतर नहीं जो तुम चाहती थी? वो कहने लगी, ए यूसुफ, मुझे मलामत ना करो, मैं हसीनो जमील नाजों में पली थी और मेरा शौहर भी ऐसा था जो औरतों के पास नहीं आता था, यानी नामर्द था, और अल्लाह ने आपको वो हुस्न दिया था कि मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हद दर्जा हसीनो जमील थे। जब इस बीबी ने आपको देखा तो आस लगा बैठी थी। ये भी कहा जाता है कि बीबी जुलेखा का खामद अजीज मिस्र जो कि इनका पहला खामद था, वो जब मरा तो आप बाकरा थी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब इनसे शादी की और इनको कंवारा पाया, पहले चूंकि आप ईमान ला चुकी थी तो इसलिए शादी की पहली रात ही बीबी जुलेखा ने इबादत खुदावंदी में खुद को गर्क कर लिया और अल्लाह पाक के हुक्म आने के बाद हक़ ज़ौजियत अता हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।